السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں عمر خطاب۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے شہباز شریف شوگر ملز کیس میں بھی گرفتار، 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو رمضان شوگر ملز کیس میں بھی گرفتار کر لیا ہے، جبکہ نیب کی استدعا پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کیس میں شہباز شریف کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ ہفتہ 10 نومبر کو ہونے والی سماعت میں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں قومی احتساب بیورو نیب نے رمضان شوگر ملز کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی۔ لاہور احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے شہباز شریف کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں کمرہ عدالت کا بند دروازہ باہر سے لوگوں نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، جس پر عدالت کی جانب سے شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کے کارکن ہیں، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ یہ وکلا ہیں۔ صورتحال قابو میں کرنے کے لیے احتساب عدالت کے جج نے کمرہ عدالت کے باہر مامور ایس پی کو طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں ان حالات میں سماعت کیسے کروں گا۔ سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا تو قومی احتساب بیورو نیب نے شہباز شریف سے مزید تفتیش کے لیے 15 روزہ ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی، جس پر عدالت نے شہباز شریف کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، جبکہ شوگر ملز کیس میں ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ نئے وکیل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور فیملی سے متعلق مشکوک ٹرانزیکشن ملی ہے، ہمیں اس ٹرانزیکشن کی تفتیش کرنی ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے نیب وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس میں میرا نام ہے، جس پر نیب وکیل کا کہنا تھا کہ جی آپ کا نام ہے۔ پچھلے ریمانڈ میں اسمبلی اجلاس کی وجہ سے تفتیش نہیں ہو سکی۔ شہباز شریف نے عدالت کے روبرو کہا کہ یہ مسلسل مجھ سے تفتیش کرتے رہے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ اس دوران نیب کی جانب سے شہباز شریف پر شوگر ملز کیس کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی، جس پر کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور شہباز شریف میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ حلفیہ کہتا ہوں کہ تفتیش کے لیے کیا تو شہباز شریف نے آنکھیں نکالی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مجھ سے تفتیش کیوں کرنی ہے، جس پر اپوزیشن لیڈر نے عدالت کے روبرو کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ مکالمے کے دوران شہباز شریف وکیل کے کہنے پر خاموش تو ہو گئے۔ نئے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف نے شوگر ملز کو فائدہ پہنچانے کے لیے پبلک فنڈز کا استعمال کیا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ چنیوٹ میں نالہ بنانے سے انکار نہیں کرتے ہیں، تاہم نالہ صرف رمضان شوگر ملز کے لیے نہیں ہے۔ اس موقع پر امجد پرویز کی جانب سے عدالت استدعا کی گئی اور رمضان شوگر ملز میں گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے۔ قبل ازیں والد کی پیشی کے موقع پر نون لیگی رہنما حمزہ شہباز بھی احتساب عدالت لاہور پہنچ گئے، جہاں کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز نے والد سے حال دریافت کیا اور مختصر گفتگو کی۔ احتساب عدالت میں چوتھی پیشی کے موقع پر شہباز شریف کو اسلام آباد سے لاہور لایا گیا۔ اس موقع پر احتساب عدالت کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ احتساب عدالت لاہور ٹھوکر نیاز بیگ میں پیشی کے موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ عام افراد اور گاڑیوں کو احتساب عدالت کی جانب آنے سے روک دیا گیا۔ سڑکوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا۔ پولیس کی کئی گاڑیاں شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ سے عدالت سخت سیکیورٹی کے ہمراہ لے کر پہنچی۔ لیگی کارکنوں کو سیکریٹریٹ چوک پر روک لیا گیا۔ سیکیورٹی پر مامور افراد کی جانب سے نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کو عدالتی احاطے کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا۔ عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر نون لیگی کارکنوں کی جانب سے شدید احتجاج اور نعرے لگائے گئے۔ آج ہونے والی سماعت میں نیب حکام کی جانب سے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں گرفتار نون لیگی سربراہ شہباز شریف کے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی جائے گی۔ واضح ہے کہ قومی احتساب بیورو نیب آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم صاف پانی کیس اور اربوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت دیگر نامزد ہیں۔ شہباز شریف کو 5 اکتوبر کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں نیب دفتر آمد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک ان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 بار توسیع کی جا چکی ہے۔
इससे पहले लाहौर की एहतसाब अदालत ने 29 अक्टूबर को शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया था, जबकि 7 नवंबर तक नैब हुकाम के सपुर्द थे। शहबाज शरीफ को जुमा के रोज़ एहतसाब अदालत पेश करना था, ताहम फ्लाइट कैंसिल होने के बायस उन्हें हफ्ता के रोज़ एहतसाब अदालत लाहौर के रूबरू पेश किया गया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं, वो नैब की हिरासत में हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब आशियाना स्कीम के लिए लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका गैर कानूनी तौर पर मनसूख करवा के पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी कासा को दिलवा दिया था। ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। नैब की अब तक की तहकीकात के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ ठेके LDA और PLD को दिलवाने पर कौमी खजाने को 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली रूल्स 108 के तहत जारी किए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बहरानों से निकल गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में शेल्टर होम का संगे बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो लोग पसमानदा इलाके से होते हैं वही ज़रूरियात की कदर को समझते हैं। उनका कहना था कि मैंने ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया जिसका घर सूबे की पसमानदा तरीन इलाके से है। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सूबे में शेल्टर होम के संगे बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने लाहौर में शेल्टर होम के क़याम के सिलसिले में कहा कि हमने वज़ीर आला पंजाब से कहा था कि बेघर लोगों को सहारा देने के लिए एक पनाहगाह बनाई जाएगी ताकि दिन भर काम करने वाले बेघर मजदूर जो हैं वो यहाँ क़याम कर सकें। जो लोग लाहौर में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा तर शहर के बाहर से यहाँ रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं। मुल्क में काम सिर्फ वसाइल से ही नहीं होते बल्कि इनके लिए आज़म की भी ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत एक ऐसा पैकेज लेकर आ रही है जिसके तहत पूरे मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जाए, जिसके लिए फलाई काम करने वाले इदारे एक छतरी के नीचे काम करेंगे। हुकूमत के इब्तदाई 100 रोज़ में गरीब के खात्मे से मुतालिक इक़दामात तरजीही बुनियादों पर है। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बनेगी जो पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मिसाल बनेगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर का बयान सामने आया है कि सऊदी अरब से $1 अरब 1-2 रोज़ में पाकिस्तान आ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कराची में ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गर्दशी कर्ज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा IPPs को होता है, सब्सिडीज़ देना मसले का हल नहीं है। असद उमर का कहना था कि सऊदी अरब से $1 अरब 1-2 रोज़ में पाकिस्तान आ जाएंगे, जबकि IMF से कर्ज़ लेके टारगेट का तयन नहीं हुआ, इस पर काम हो रहा है। जब IMF की टीम लीडरशिप के साथ बैठेगी तो फिनांसिंग के नंबर्स पर बात होगी। तहम IMF की टेक्निकल टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुंडी और दीगर रकम तरसील के तरीकों ने मुल्क में तबाही मचाई। FATF संजीदा मामला है। जनवरी में FATF में अच्छी पेशरफ्त का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि दुबई में 4000 पाकिस्तानियों के एहसासों का मालूम हुआ है और दीगर मुल्कों में 97,000 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ का पता चला है कि 96,000 फ़ॉरेन अकाउंट होल्डर्स को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। अगर किसी फ़ॉरेन अकाउंट होल्डर्स के पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो कोई मसला नहीं होगा। जिन फ़ॉरेन अकाउंट होल्डर्स के पास जवाब नहीं होगा तो मसाइल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बजट टारगेट को नहीं, टैक्स मशीनरी को ठीक करना होगा। 1300 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। टैक्स मसाइल के हल के लिए खसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद भी कहा कि अबराज ग्रुप से शिंगाई इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त के लिए रज़ाक दाऊद की सरबराही में कमेटी बनाई है और कमेटी ने शिंगाई इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक से बात की है। कमेटी की कोशिश है कि के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त का जल्द अज जल्द फैसला हो। के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त पर 2 शेयर होल्डर्स में इत्तफाक हो जाना चाहिए, जो हुकूमत नहीं कर सकती है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हुकूमत की वजह से इस मामले में ताख़ीर ना हो। उन्होंने कहा कि हम कराची में बिजली का निज़ाम चलाने वाली कंपनी के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल नहीं चाहते हैं। अगर हम बात करें MQM के पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की, तो उन्होंने कहा है कि राब्ता कमेटी के लोग अपने असासे ज़ाहिर करें।
वरना मैं उनसे पर्दा उठाऊंगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा कि राब्ता कमेटी के लोग आमिर खान और कंवर नवीद और दीगर अपने असासे कारकुनान के सामने जाहिर कर दें, वरना मैं बहुत जल्द इनसे पर्दा उठा दूंगा, इंकशाफात कर दूंगा। और कराची में साफियों से बातचीत करते हुए ये उन्होंने बयान जारी किया। और राब्ता कमेटी चंद कब्जा गिरों, जागीरदारों और लुटेरों की वजह से कारकुनों में अपना एतमाद खो चुकी है और पार्टी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए, और अगर कुछ बेहतर लोग आगे आना चाहते हैं तो उन्हें उनका ये जमहूरी हक दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान को बहरान से निकालने के हल पेश कर दिए हैं, लेकिन अगर राब्ता कमेटी या पार्टी पर कुछ लोगों का कब्जा है तो वो मन माने फैसले कर रहे हैं। फ़ारूक सत्तार का यह भी कहना था कि कारकुनों की बड़ी तादाद समझ रही है कि मन माने फैसलों से तंजीम को नुकसान हो रहा है, तंजीम के नजरिए और मंशूर पर समझौता हो रहा है। साबिक MQM रहनुमा ने कहा कि मुझे तंजीम की बुनियादी रुकनियत से खारिज करने का फैसला मैंने और हजारों कारकुनों ने भी मुस्तरद कर दिया है, और ये अनापरस्ती जो चंद अनागीर जो कर रहे हैं कारकुनान उन्हें मुस्तरद करते हैं। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि हम सियासी जमहूरी तरीके से पार्टी चलाना चाहते हैं, जबकि वो लोगों को डराकर उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर पार्टी चलाना चाहते हैं, लिहाजा ये फैसला हो कि पार्टी किस तरह चलाई जाएगी। साबिक कन्वीनर का कहना था कि मैं आमिर खान और कंवर नवीद खुद को कारकुनान की अदालत में पेश करें और 1986 से लेकर आज तक जो हमने बनाया, जो हमारे असासे हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, वो हम कारकुनों की असेंबली, अदालत और बड़े इजलास में पेश कर दें, और अगर ये नहीं रखेंगे तो चंद दिनों बाद मैं सबके असासों से पर्दा उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये सब बताएं कि 1986 में आप क्या थे और ये असासे और जायदादें आपने किस तरह बनाई, क्योंकि अब कारकुनों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान का कहना था कि फ़ारूक सत्तार ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है और उन्होंने तीसरी मरतबा पार्टी को तबाह करने का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के दौरान फ़ारूक सत्तार पाक सरजमीन पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए थे और उनका किरदार सबके सामने है। ये कहना है कि 22 अगस्त के बाद उन्होंने पार्टी को संभाला है तो ये गलत है। महफूज यार खान का कहना था कि फ़ारूक सत्तार को नजरियाती ग्रुप के बजाय ज़रूरियाती ग्रुप बनाएं, आपकी बहुत ज़रूरतें हैं, आप चंदा लें और खा जाएं क्योंकि यही आपका मंशूर है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।